ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے پسندیدہ پروگرام مجلس مذاکرہ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک مذاکرہ ہیں مولانا اشفاق سلفی صاحب اور مولانا شمیم فوزی صاحب اور مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب اور مولانا شکیل احمد سیتاپوری صاحب۔ آپ تمام علماء اکرام کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ خاندان ٹوٹنے کے کیا اسباب ہیں، اس موضوع پر اس سے پہلے 3 حلقے ہو چکے ہیں۔ یہ چوتھا حلقہ ہے جس میں خاندان بننے کے بعد جو ٹوٹتا ہے اور اس کی کڑیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں اور جس کے غلط نقصانات ہوتے ہیں بچوں پر، بچے اس کے نعوذ باللہ قربانی کے بکرے بنتے ہیں، اور نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے ایسے واقعات اور ایسے خاندان بڑھتے جا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اس کی کوئی حد ہونی چاہیے اور میاں بیوی کو اس سلسلے میں روک لگانے کی ضرورت ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے، تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ میں مولانا اشفاق سلفی صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ کتنا خطرناک ہے ایک معاشرے کے لیے اور ایک ملک کے لیے کہ خاندان ٹوٹتے جا رہے ہیں اور نعوذ باللہ اس کے غلط نتائج اور فسادات اور جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اس سلسلے میں ناظرین کرام کو بتائے کہ طلاق کوئی یہ ذریعہ نہیں ہے کہ ہر مسئلے کی وجہ سے جو ہے نعوذ باللہ آدمی طلاق کا لفظ استعمال کرے اور اپنے مضبوط خاندان کو، مضبوط تعلق اور مضبوط رشتوں کو توڑ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے، طلاق جس کو لوگ یا مسلم کمیونٹی میں اکثر لوگ پہلا حل سمجھتے ہیں میاں بیوی کے اختلاف کے ازالے کا، یہ بہت غلط تھنکنگ ہے، یہ شریعت سے ناواقفیت کرتی ہے۔ یہ آخری حل ہے جہاں میاں بیوی کی زندگی میں کہیں کوئی چارمنگ نہ ہو اور دور دور تک کہیں ایک ساتھ زندگی بسر کرنے کا امکانات نہ ہو۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے اور بیوی کچھ مخالفت کرے، برتری کا اظہار کرے، پاگل پنی اور بد دماغی کا مظاہرہ کرے، تو شریعت نے کہا ہے، قرآن کہتا ہے فَعِظُوهُنَّ، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 مشہور آیت ہے، فَعِظُوهُنَّ، پہلے ان کو نصیحت کرو۔ نصیحت کے اندر، وعظ کے اندر شوہر کی اطاعت کی فضیلت، شوہر کی مخالفت کی وعید اور عقاب کی آیات اور حدیثیں سناؤ۔ اگر نہیں تم سنا سکتے، عالموں کو بلا کر گھر میں اس طرح کے وعظوں کی مجلس منعقد کرو تاکہ ان کو پتہ چلے۔ اس کے بعد اگر وہ سمجھدار ہوں گی، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی ہوں گی، سمجھیں گی۔ اگر وہ نہیں سمجھتی ہے، پھر بھی بد دماغی پر قائم ہے، تو ان سے کہا گیا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر میں ان کو الگ چھوڑو، بستر سے باہر نہیں جانا ہے۔ جی، بستر میں الگ چھوڑنے کا مطلب قرطبی نے لکھا تفسیر میں کہ کروٹ گھما کر رخ گھما کر سو جاؤ، سبحان اللہ۔ پشت کر دو اس کی طرف، رخ کے بجائے پشت کر کے سو جاؤ۔ یا اگر معاملہ ہے تو گھڑی کے اندر وَلَا تَهْجُرُوهُنَّ إِلَّا فِي الْبُيُوتِ، اگر آپ ہے تو دوسرے بستر پہ چلے جاؤ، دوسرے بستر پر چلے جائے، نیچے آ جائے، کوئی ایسی شکل ہوگی۔ 2 روز 1 روز اگر اس طرح کی بے رخی عورت دیکھے گی، ذہین عورت ہوگی، دیندار ہوگی، سمجھدار بھی ہوگی، عقل مند ہوگی، سوچے گی کہ شوہر مجھ سے کیوں نفرت کرتا ہے، کیوں مجھ سے بستر الگ کیا ہوا ہے، کیوں پشت پھیر کر کے ہماری طرف رخ کرنے کے بجائے پشت کر کے سو گیا، تو وہ سمجھے گی۔ اگر اس کے بعد بھی نہیں سمجھتی ہے تو اللہ نے کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، ضرب لگاؤ، ہلکی مار مارو، ادب دینے کے لیے ہلکی مار، چہرہ بچا کر، گالی گلوچ بالکل نہ کرو۔ یہ نہ کہو وَلَا تُقَبِّحْهُنَّ، یہ نہ کہو قبح اللہ وجہ، اللہ تیرے چہرے کو بگاڑ دے، تو ایسی ہے تو ایسی ہے، تو گالی گلوچ کی کیسے ہونی، ہلکی پٹائی پیٹو، اور بھی چہرہ بچا کر، ادب دینے کے لیے۔ اگر اس کے بعد بھی نہیں سمجھتی تو اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا ایک دوسرا مرحلہ ہے، یہ دوسرا مرحلہ، یہ چوتھا مرحلہ ہے جی، کہ صاحب ایک مرد کے طرف سے حکم، ایک اس کی طرف سے حکم، یعنی شوہر اپنی طرف سے پوری طریقے سے کوشش کرے معاملے کو سدھارنے کی، بنانے کی، ایک وہ شخص سلجھانے کی، جو شوہر کے معاملات کو سمجھتا ہے، جی، حکم اور مطلب جج، اور ایک عورت کے طرف سے آنے والا آدمی جو عورت کے مسائل کو سمجھ رہا ہے، شوہر سے کیا تکلیفیں ہیں، ان کو سب ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، پھر وہ جمع تفریق کرنا جانتا ہو، کیا نقصانات ہیں، کیا الگ ہونا ضروری ہے، کہ ان کو ساتھ نبھایا جا سکتا ہے۔ ان یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، اصلاح کے پیش نظر جدائی کرانا مقصود نہ ہو کسی کا، سمجھے کہ صاحب خاندان نہ بکھڑے، خاندان کو جوڑنا ہے، اس لیے پوری کوشش ہو کہ دونوں کو قریب کریں، شکوہ شکایات کو دور کریں، آپ ذرا نارمل ہوئیے، آپ ذرا سا ادب سیکھیے، آپ زیادہ اپنی قوامیت نہ دکھائیے، آپ بھی اپنے حد سے باہر نہ جائیے، اس طریقہ سے جوڑ گھٹا کر کے، جمع تفریق کر کے، پلس مائنس کر کے ان کو قریب کریں۔ اگر نہیں ہوتا ہے مسئلہ تو آخری سولوشن ان لم یکن
عرب کا مقولہ علم یکن وفاقن ففراقن، اگر اتفاق کی کوئی صورت نہ ہو، ملنے کی، ایک ساتھ رہنے کی کوئی شکل نہ بنے، تب طلاق ہے، اور پھر طلاق کے اپنے مرحلے 99.9% تک کوشش کرنی چاہیے. جی آخری حد تک کے معاملہ سب ہے جی اٹھاتے ہی جی صبر کے ساتھ. اور یہ جو اسٹیپس ہیں اصلاح کے، جو اقدامات قرآن نے بتائے ہیں 1 by 1 جی ایک کے بعد ایک، اس طریقہ سے ادنا درجے سے لے کر اعلیٰ درجے تک، اور یہ آخری سولوشن ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی مسئلے کا حل ہے، یا یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ جب تک 3 طلاق کی ٹھوکریں نہ لگائیں. یہ شاید کسی اور موضوع کے تحت بات آئے گی، انشاءاللہ بات آئے گی. میں اپنی بات یہیں روکتا ہوں. نہیں، اس میں ایک چیز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مولانا نے فرمایا کہ نصیحت کرو اور ان کو ترک سلام و ترک کلام کر لو، اور پھر گھر کے ذمہ داروں کو بھیجو صلح کے لیے، اگر یہ بھی صورت کامیاب نہ ہو تو اس میں ایک چیز مجھے یاد پڑتی ہے، علماء نے لکھا ہے اس کے بعد بھی جی غور کرنا چاہیے کہ کیا ان عیوب کے ساتھ، عورت کے ان عیوب کے ساتھ یا اس بد اخلاقی کے ساتھ ہم برداشت کر سکتے ہیں اور نباہ کر سکتے ہیں. اگر نباہ ممکن ہو تب بھی اقدام طلاق نہ کریں. بالکل اس میں شک نہیں ہے. خاندان کو یعنی پھر بنانا غور اور کریں. بنائے رکھنا ایک یہ مرحلہ ہے تمام کہ غور قربانیوں پھر کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ، یہ کمال عقل کی دلیل ہے جی، حکم کمال ناکام انسانی کی ہو جائیں. دلیل ہے. میں عرض یہ کر رہا جی تھا کہ مولانا. آج کل جو صورتحال ہے جی وہ یہ ہے کہ کیونکہ جہالت ہمارے پاس بہت زیادہ ہے خاندانوں میں مسلمانوں کی، تو اس کو فوری آ جاتا ہے. روزانہ آپ دیکھیں گے آئے دن یہ باتیں آتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پچھتا کے آ کے یہ بولتے ہیں کہ جناب مولانا صاحب ہم نے تو بڑے غصے میں کہہ دیا تھا اور جذبات میں کہہ دیا تھا. تو اب یہ سب چیزیں بھی بہت ہی مسائل پیدا کرتی ہیں. تو سنجیدگی بھی ہو، شعور بھی ہو، جو شریعت کے احکامات ہیں وہ بھی آدمی جانے. اور یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے یہ تو آخری وہ چارہ کار ہے کہ گھٹن کی زندگی، پریشانی کی زندگی، جہنم کی زندگی گزارنے سے بہتر یہ ہے جی کہ تم اپنا راستہ لو، وہ اپنا راستہ لے. یعنی آپ یہ تو کہنا ایک چاہ رہے طریقہ ہیں کہ بیان کیا ہے اسلام نے. آخری حل، اور وہ بھی رحمت ہے انسان جب نباہ ناممکن ہو یہ جائے. طلاق رحمت ہے. اللہ نے فرمایا نا وَإِن وہی. يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. تو اب اس چیز کو لیکن اگر اس کو عذاب کی شکل میں نہیں بنانا چاہیے. عذاب نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو آخری شکل ہے کہ کوئی نباہ کی صورت نہیں ہے. جی بالکل. اب اگر آدمی طلاق نہ چاہے آخری شکل میں بھی تو یا تو وہ معلق رہے گی، اس کی آشنائیاں دوسروں سے ہوں گی. تو اس کے لیے اسلام نے جو طریقہ نکالا ہے یہ فطری طریقہ ہے. اس پر غیر جو بہت تنقید کرتے ہیں اس کا ایک یہ مناسب اسلام حل کے یہ ہے. احسانات میں سے ایک احسان ہے یہ اسلام جی. کا. دنیا کا یہ واحد مذہب ہے جس نے طلاق کا سولوشن میاں بیوی کے نزاع کے آخری حل کے طور پر پیش کیا ہے. مختلف- اسلام سے قبل دنیا کی کوئی قوم نظام طلاق کو نہیں جانتی. اور آج بھی دیگر جو مذاہب ہیں وہ اس مسئلے میں جوجھ رہے ہیں، اس مسئلے میں جوجھ رہے ہیں کہ وہ الگ نہیں کر سکتے. وہ حالات کے لحاظ سے بھی نہیں، قانون کے لحاظ سے بھی، اپنے مذہب کے لحاظ سے بھی نہیں، جس کی وجہ سے اتنی شدید برائیاں پیدا ہیں ان کے سماج کے اندر جس کا کوئی حل نہیں ہے. اسلام کا یہ ایک رحمت کا عنصر ہے. سبحان اللہ. اب رہا وہ پہلو کہ یہ چیز ہم حکمت کے ساتھ کریں، جیسا کہ سلفی صاحب نے بتایا کہ اس کے مدارج ہیں اور اس کے اسٹیجز ہیں، جی. ان کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں جانا ہے. لیکن ایک بہت ہی تکلیف دہ جو بات ہے جی جس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے وہ یہ کہ خدا نخواستہ یہ چیز جب پیدا ہو جاتی ہے، آخر تک نہیں ہونی چاہیے، تو وہ جو باتیں آتی ہیں کہ بچوں پر اس کا غیر معمولی اثر پڑتا ہے. اصل میں یہاں پر ایک چیز یہ ہے سعیدی صاحب کہ یہ قوانین مرد لوگ کبھی کبھی ایسا افراد کا شکار ہو جاتے ہیں، برتری، احساس برتری ان میں آ جاتی ہے کہ وہ صرف ان قوانین کو اپنی خاتون پر تو لاگو کرنا چاہتے ہیں، خود اس سے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں. حالانکہ قرآن نے جو تصور دیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان کا بھی ویسا ہی کچھ حق ہے جیسا تمہارا حق ان کے اوپر ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کچھ انبن ہو گئی اور برتن ایک جگہ ہوتے ہیں تو بچتے ہیں، کچھ ہو جانے کے بعد بس یہ ہے کہ میں شوہر ہوں، میں مرد ہوں، میں کمانے اور کھلانے والا ہوں، تو بس تو نے زبان کیوں کھولی، کیوں کہا، مارنا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے. ایک طرف جاہل طبقہ ایسا کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف زیادہ پڑھا لکھا طبقہ بھی ایسا اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہوئے کرتا نظر آتا ہے، اور وہ بھی اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور اس طرح سے بات پہنچ جاتی ہے طلاق تک کہ مار اور پیٹ کیوں. تو اگر یہ مسائل جو طلاق اور نکاح کے بتائے ہیں اسلام نے، جس طرح خواتین کے لیے ہیں، اسی طرح ہم اپنے مرد حضرات پر بھی جو بالغ ہو چکے ہیں یا جو شادی کر چکے ہیں، شادی کے قریب تک پہنچ چکے ہیں عمر کو یا ہونے والی ہے، ان کو اگر بتایا جائے کہ یہ حقوق سب کے برابر ہیں اور بالکل وہ تمہاری خدمت گار تو ہے، تمہارے بچوں کی نگراں تو ہے، لیکن تمہارا بھی حق اس پر بنتا ہے کہ اس کی حفاظت کے تئیں، اس کے بچوں کی حفاظت کے تئیں
रवादारी से काम लो और यही कि कुछ दरगुजर से काम लो, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक ये बातें रहेंगी कि आपस में मिलकर अच्छा, तलाक के बारे में मैं जो समझता हूँ कि जैसे निकाह एक मंसूबे के तहत किया जाता है, सोच समझकर, बहुत पहले से सोचता है आदमी, कई महीने तक उसका मंसूबा बनाता है, तब कहीं निकाह करता है। इसी तरह तलाक को भी मंसूबा बंद तरीके पर देना चाहिए, ये नहीं कि अचानक रद्द अमल के तौर पर और दिल के बुखार के तौर पर तलाक देते हैं। और बस कुरान ने तो यही पेश शरीयत में बाकायदा उसका एक प्लान दिया है जी। नाज़रीन किराम, ब्रेक तक के लिए इजाज़त दीजिए, एक ब्रेक के बाद हम दोबारा आपके ज़रिए खिदमत होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ल से ताइम रोज़ चराग़ मुस्तफ़वी से शरार बूलह से ऐ बनी नौ इंसान, अपने रब की बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया। ईमान और इंसानियत की हिफाजत हो। ए नबी से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। कुफ्र और शिर्क की मुखालफत हो। अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं करेंगे और अल्लाह के सिवा किसी को रब नहीं बनाएंगे। बदकारियों की मजम्मत हो ताकि तुम इफरात और तफरीद के धक्कों से बच सको। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर खटवानी। ए कुरान वालों, कुरान को तकिया न बना लेना, जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो तो यकीनन कामयाब होगा। दीजिए अपने हर कौल व अमल से मोमिन होने की पहचान, रब का फरमान। कल शाम 5:30 बजे और दोबारा रात 12 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। जहालत, नाइंसाफी, जुल्म, जात पात, रंग और नस्ल, फिरका परस्ती, दहशत गर्दी आज सारी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़े हुए है और इंसानियत को तलाश है अमन की। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम अपनी नौइयत की पहली उर्दू आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र के मोतबर उलमाए कराम, एक प्लेटफॉर्म, एक मकसद, अमन के पैगाम को दुनिया के कोने कोने में फैलाना। ये एक इतिहास का कारवाने अमन, अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मजलिस मुज़ाकरा में दोबारा आपका इस्तकबाल है। मौलाना अशफाक सलफ़ी साहब, आपने तलाक कहाँ देना चाहिए, कब देना चाहिए और इस्लाम के क्या हिदायत हैं, इस पर आप बयान फरमा रहे थे। आप तफसील से जो नुक्ता बता रहे थे, ज़रा तफसील से आप बताइएगा। इस्लाम का निज़ाम तलाक ये है कि आदमी नागज़ीर हालत में बीवी को पाकीज़गी की हालत में, यानी जब वो हाइज़ा ना हो या पाक तो हो लेकिन पाकीज़गी में पहले उससे हम बिस्तरी न कर चुका हो, तो बग़ैर हम बिस्तरी किए हुए पाकीज़गी की हालत में, तहारत की हालत में, जब वो हैज़ से पाक हो चुकी हो या ये कि फिर हामिला हो, हामिला भी औरत हो तो हमल की हालत में भी तलाक देना सुन्नत है, खिलाफ सुन्नत नहीं है। लेकिन तोहर में जिसमें बीवी से मुजामियत कर चुका है और उसके अंदर मुजामियत के बाद तलाक दे रहा है या हैज़ की हालत में तलाक दे रहा है, तो तलाक भी दी है, हराम तलाक है। वक़ू और अदम वक़ू में की तलाक होगी कि नहीं होगी, इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ है, मैं उससे ज़रा सरफ़ नज़र करना चाहता हूँ। लेकिन इस्लाम ने कहा कि ऐसा नहीं हो कि आदमी हैज़ की, बाज़ ख़वातीन को इससे ज़्यादा भी हैज़ आता है, तो ये सोच करके कि साहब बीवी हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है तो हम तलाक दें, ये जज्बात से मगलूब होने व शहवानी जज्बात से, या इसी तरीके से किसी बात पे गुस्सा हुआ और तलाक देना चाहता है, उसको सोचना चाहिए कि कल अभी रात मैंने बीवी से हम बिस्तरी की है, तो इसलिए इस्लाम ने कहा कि ऐसी हालत में तलाक दोगे तो तलाक भी दी होगी। ये इसलिए ये सब सोचने की बात है कि हो सकता है कि हैज़ की हालत में इक़दाम करना चाहता था, हैज़ के बाद जब औरत पाक हुई, तजम्मुल और तज़य्युन उसने अख्तियार किया, ज़ेब व ज़ीनत करके बन संवर के गुस्ल करके तैयार हुई, तो मर्द ने अपना इरादा बदल दिया। या किसी बरख्रोफ्ता हुआ था लेकिन शरीयत ने कहा खबरदार, तुमने तहारत की हालत में कल सोबत कर लिया, आज तलाक का इक़दाम करो किसी बात पर, खबरदार तलाक नहीं दे सकते, हराम तलाक होगी, गुनहगार होगे तो रुकेगा। यहाँ तक कि अगर तलाक देनी भी है तो अगले महीने जब हैज़ आएगा, वो पाक होगी, फिर सोबत करने से पहले देना, इतना लंबा लॉन्ग पीरियड होगा कि वो सोचने पर मजबूर होगा और उसका इरादा खत्म हो जाएगा। ये तरवी है, ये सोचे, वो सोचने का मौका है। अब उसके बाद जैसा कि आपने फरमाया कि तलाक दे तो कैसे दें, रवायत आई है तिरमिज़ी के अंदर कि मर्द जाहिलियत में जितनी चाहता था मर्द बीवी को तलाक देता था, टॉर्चर करने का ये तरीका था, और जब वो इद्दत से निकल जाना चाहती थी तो फिर उसको पलटा लेता था, चाहे 100 तलाक की नौबत क्यों ना, और इस तरीके से कहता था न मैं तुझे बीवी बना के रखूंगा, न मैं तुम्हें दूसरों के लिए आज़ाद करूंगा, जब इद्दत के करीब हो फिर लौटा ले। शरीयत ने बड़ा एहसान किया
कहा कि 2 तलाक ऐसी है जिसमें तुम देख करके तरवी कर सकते हो, सोच सकते हो, अपना मुहासबा कर सकते हो। औरत अगर गलती पर है, उसकी गलतियों के नतीजे में तलाक हुई है, तो उसे भी सोचने का मौका मिले, वापस ले सकते जी। और 2 मरतबा ऐसा हो जाने के बाद फाइनली तीसरी तलाक जब कभी होगी, तब वो बिल्कुल आखिरी होगी, इसमें बैरूनत कुबरा होगी कि अब आप इकट्ठे नहीं हो सकते, मगर ये कि हलाला शरिया के जरिए आएगा। मैं थोड़ी सी इसकी तफसील करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने तोहर की हालत में या हैज़ की हालत में मुजामियत से कबल बीवी को 1 तलाक दिया, उसकी इद्दत शरीयत ने बालगा औरत के लिए जिसका हैज़ जारी है 3 हैज़ रखा है। अब इस 3 महीने की मुद्दत में औरत बीवी के हुक्म में है। कुरान ने कहा ला तुखरिजुहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, घरों से बाहर। होता क्या है, तलाक दिया, फौरन हाथ पकड़ के घर से बाहर कर दिया। वो बीवी है, वो तजम्मुल इख्तियार करे, जीनत इख्तियार करे, खुर्दोनोश के आप जिम्मेदार हैं। ये इतना इसलिए कि हो सकता है कि कभी आपका मन उसकी तरफ आ जाए और वो भी अपनी हुस्न अदा से आपका दिल जीत ले। और ये 3 हैज़ की मुद्दत या बाज़ उलमा के नज़दीक 3 तोहर की मुद्दत मुराजिया के लिए, अपने इस्लाह अहवाल के लिए बहुत काफ़ी है। अब अगर आपने अल्हम्दुलिल्लाह लौटा लिया, ख़ानदान टूटने से बच गया आपका, और 1 तलाक आप पर शुमार हुई, उसके बाद आपने लौटा लिया। ऐसे ही फिर दूसरे कभी किसी मौके पर आखिरी हल के सोल्यूशन के तौर पर अगर तलाक ही आपके नज़दीक हल है, तो फिर इसी तरीके पर जो तरीका अभी जिक्र किया गया नाज़रीन के सामने, फिर आप एक दूसरी तलाक दीजिए और फिर 3 महीने की 1 तलाक हुई और फिर 1 तलाक दीजिए। अब 3 हैज़ या 3 तोड़ की मुद्दत आपके लिए है। और अगर वो सिंदा सीधा खातून है या अभी बीवी तो है लेकिन गैर बालिगा से शादी किया है, तो उसकी इद्दत 3 हैज़ है या 3 माह है, तो इतनी मुद्दत के अंदर फिर आप उसको लौटा सकते हैं, वो अपनी मर्जी से। वो बऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिक, इस मुद्दत में इद्दत के दरमियान शौहर को हक है उसमें। ये नहीं कि औरत आनाकानी करेगी, नहीं जा सकती, क्योंकि घर में रहेगी तो सोल्यूशन मुमकिन है। उसके बाद अगर ये 2 मरतबा की तलाक के बाद भी मियाँ बीवी नहीं संभले हैं और फिर आखिरी तीसरी मरतबा कभी तलाक की नौबत आएगी, के बाद भी यूं पड़ती है। यानी आप, मैं ये कहना चाह रहा था मुफ्ती साहब से, जी आपकी इसी नुक्ते की वजाहत, मजीद वजाहत के लिए, आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि जब तक 3 तलाक न दी जाए उस वक्त तक जो है जुदाई नहीं हो सकती। जी मौलाना ने उस नुक्ते को वाज़ेह किया है। ये तो मुआशरे की ये बहुत बड़ी तबाही है और जिहालत है। और जो मौलाना अशफाक साहब ने कहा वही और भी दीगर मकातिब फ़िक्र कहते हैं कि तलाक के अंदर मरहला वार, जी, तोहरे खाली अनिल जिमा में तलाक दो, जी, और फिर तोहरे खाली अनिल जिमा में मौलाना ने जैसे एक वो सूरत बताई वो भी ठीक है, यानी एक इद्दत गुजरने के करीब है, जी, तो रुजू कर लिया, उसके बाद फिर 2-3 महीने इंतजार किया, फिर इद्दत गुजरने के करीब रुजू कर लिया, तो अभी औरत निकाह में है। तो एक सूरत यह है कि तोहरे खाली अनिल जिमा ऐसा महीना कि जिसमें औरत पाक है और उसके अंदर गोया वो मरगूब फी है, यानी उसकी तरफ रग़बत भी हो सकती है, हैज़ नहीं है, रग़बत है, लेकिन इसके बावजूद आदमी तलाक का इक़दाम करता है तो समझा जाएगा कि शायद तलाक की ज़रूरत है। मैं ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ आप हजरात की तरफ से कि शौहर कभी भी किसी भी मौके पर 3 तलाक का हरबा इस्तेमाल ना करे एक ही साथ। जी, ये बिल्कुल किसी भी तरीके से आप हजरात की तरफ से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ नाज़रीन किराम को कि ये 3 तलाक का जो सिलसिला चल पड़ा है, दलाइल सही की रोशनी बिल्कुल हराम है। जी, नऊज़ बिल्लाह, आज जो जिसकी वजह से नुकसानात, जैसा कि आपने इशारा किया, बच्चों पर जो उसके नुकसानात हैं, औलाद जो बेहरा रवी का शिकार होती है, तो नऊज़ बिल्लाह, उसके बजाय इस्लाम ने कहा कि अगर वाकई अगर आप उसके देख रहे हैं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं, तो सिर्फ 1 दीजिए। और जैसा कि मौलाना ने फरमाया, 1 तलाक देने के बाद 3 तोहर या 3 हैज़ के बाद की मुद्दत एक लंबी खत्म होने के बाद अगर आदमी उस फतरे में रुजू नहीं करता है तो खुद मियाँ बीवी के दरमियान हो जाती है। जी, अब उसका लेकिन एक फायदा ये है कि कम से कम अगर दोबारा वो लोग 1 साल या 2 साल के बाद तो दोबारा अगर वो शादी करना मिलना चाहते हैं, जी, अब मियाँ बीवी के रिश्तों को बाकी रखना चाहते हैं, तो निकाह जदीद के साथ, महर जदीद के साथ, निकाह जदीद, महर जदीद, जिस तरीके से शादी का इस्लामी जो निज़ाम है, यानी आजकल जो हलाला मुरव्वजा है, मलऊन तरीका है, इसकी नौबत नहीं आती, इसकी नौबत। और फिर एक बात मैं और उसमें जरा जोड़ना चाह रहा था कि ये चीज़ तो बदरजे मजबूरी होनी है, लेकिन हमने ये देखा है और तजर्बात भी हैं कि जो आपने बताया ना कि बच्चों पर गैर मामूली असर होता है इसका, अगर जुदाई हो भी जाती है तो उसको भी रोकने के लिए तदाबीर होनी चाहिए कि भाई बच्चों पर भी उसका असर ना हो। मजबूरन ये चीज़ हुई है और हम देखते हैं कि ये नफसियाती चीज़ उनकी ज़िंदगी भर होती है। एक पहलू तो ये। दूसरी बात जो मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर कहूँ वो ये कि बदरजे मजबूरी तलाक जब हो जाती है या जो पेश आ जाती है, अमलन होता है, नावाकिफियत की बिना पर, जहालत की बिना पर, फिर मुकदमों का दौर चलता है। यानी लड़की वाले मुकदमा कर रहे हैं। बात जो हिंदुस्तान का कायदा और कानून है इसमें तो ये है कि जितने लोग हैं सब की ज़मानत नहीं होती,
झूठा डाउरी एक्ट, हाँ जी, वो जो है ना उसमें फिर जहेज का लगता है। अच्छा, उसमें फिर इधर से सारे झूठ के पलंदे तैयार किए जाते हैं, उधर से सारे झूठ के पलंदे तैयार किए जाते हैं, तो उससे जो मैसेज जाता है बाहर वो दिगर अक़वाम के सामने भी बहुत ही गलत जाता है। जब इस्लाम ने तो इसको एहसान से ताबीर किया है, एक रहमत बताया है, अब नावाक़फ़ियत की बुनियाद पर उसको अपने नाक का मसला बना के, आना का मसला बना के, हालांकि ऐसा हो सकता है कि वो बीवी हो सकता है इससे अच्छा शौहर उसको मिल जाए और ये शौहर इससे अच्छी बीवी उसको मिल जाए, लेकिन अब वो खाम खा के जो ये सब चीज़ें आज आ रही हैं हमारे समाज के अंदर, अब अगर जुदाई ही ज़रूरी है, निबाह नहीं हो सकता, तो फिर एहसान के साथ अलग हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो चल रहे हैं, यानी मुकदमात चलते हैं, तरह तरह की जो है वो साजिशें होती हैं और लोगों को जी कबूल नहीं करते, एक दूसरे को टॉर्चर करें। और उसके वजह असल में यही है कि हमारे घरों में तस्के नफ्स का ये माहौल नहीं है, हमारे महरों में तस्के नफ्स का, मर्दों के लिए तो कहीं ठीक है जलसे जुलूस हो गए, ख़वातीन बहुत ज़माने तक महरूम रहती हैं, उनको कोई ऐसा मौका नहीं आता है कि तस्के नफ्स हो, उनकी कह लीजिए जी तालीम का मसला हो, या जैसा कि ईमान ज़्यादा होता है और घटता भी है, वो किस वजह से जब सुनाया जाता है कुछ कुरान करीम की तिलावतों से और उसके मानी मफाहिम से, अहादीस रसूल से, तो इस तरह अगर तस्के नफ्स का माहौल हो तो दीनदारी दुनियादारी ख़त्म हो। दुनियादारी जब हमें समझ आती है तो फिर ये सारे मौलाना आपने ऐसे मौक़ों पर आम तौर पर जुल्म सितम का शिकार हो जाते हैं लोग और मुकद्दमों में फंसकर जो है गलत मुकद्दमात और जो है गलत शिकायतें और झूठे नऊज़ुबिल्लाह ख़वातीन जेलों में चली जाती हैं, ख़वातीन जेलों में जाती हैं, कितना गलत होता है वगैरह वगैरह है उनका, या शौहर जेलों में चले जाते हैं जितने शौहर। ये बेहतर नहीं होगा मौलाना कि ऐसे मौक़ों पर हमारी मस्जिदों में, हमारे महल्लों में शरई अदालतें, क़ज़ा शरई पंचायतें वगैरह का जो शरई अदालतें हों, वह बढ़ना चाहिए, जहाँ लोग मसाइल वो ईमान बिल्लाह और खशियत इलाही की कमी है कि शरीयत से ज़्यादा अच्छा वमन अहसन मिनल्लाह हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले और अहकाम से बेहतर अहकाम कहाँ मिलेंगे। सही, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम को फॉलो करें, शरई ज़ाब्ते के मुताबिक नागज़िरी हालात में ही तलाक हो, तलाक भी शरई ज़ाब्ते के मुताबिक हो, 3 महीना या 3 हैज़ की मुद्दत मामलात को समझने के लिए दोनों फरीक के, दोनों के औलिया को और अरबाब हल्ल अक़्द के लिए बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एक मरहला आता है, फिर जुदाई अगर फाइनल होती है तो फिर हो जाती है, उसके बाद मामले को अदालत तक ले जाना, झूठ सच का पुलिंदा तैयार करना और इसमें अपने लिए रुसवाई मोल लेना और दूसरे को रुसवा करना, ये तो किसी भी तरीक़े से जायज़ नहीं है। और एक तरीक़े से ये कह लीजिए कि अल्लाह सुब्हान ताला की शरीयत से बगावत है। अच्छा, 3 तलाक दे भी दिया, चलिए खैर से उसको फतवा भी किसी ने दे दिया कि साहब हो गई तुम्हारी 3 तलाक, अब उसको रजत कैसे करे, क्योंकि फिर ख़ानदान टूट रहा है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, अब रोता गिड़गिड़ाता है हमारे बच्चों का क्या होगा, मैंने तो नादानी की, ये किया वो किया। अब ऐसी सूरत में यह है कि साहब आप उसको अगर कहते हैं हलाला करो, हलाला शरिया की, तो हलाला शरिया नहीं करता है, बाकायदा वो हलाला हलाल करने के लिए निकाह करवाता है, किराए पर आदमी तलाशता है, एक शख्स के लिए जी एक शख्स के लिए शादी कराता है, उससे तलाक लेता है। अरे इस्लाम में तलाक के ताल्लुक से बहरहाल उलमा में इख्तिलाफ है, ये अलग मसला है, लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह कई मुस्लिम ममालिक में 3 तलाक को 1 तलाक के तौर पर माना गया है और उसी पर फैसला होता है। आपने छेड़ा था अभी कि क्या ये जो मसाइल आ रहे हैं, ऐसा मुनासिब नहीं होगा कि हम अपने महलों में ऐसी अदालतें रखें? जी बहुत मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि ठीक है अगर हम अपने महलों में अदालतें नहीं कायम कर सकते कि उतने लोग नहीं उतने, लेकिन हमारे महल्ले की जो मस्जिदें हैं जिसका रोल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये था कि बड़े बड़े फैसले हुआ करते थे, हत्ता कि कैदियों तक को वहाँ लाकर बांधा जाता था, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल कि अगर एक अच्छा इमाम है, उसके ट्रस्टी हैं, जिम्मेदारान हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो वो साहिब हल्ल अक़्द लोग हैं, अगर उनके पास वहाँ मस्जिद में मामला आता है और ऐसा नज़्म किया जाए, ऐलान किया जाए कि ऐसे मसाइल हो यहाँ करके उसका हल लिया जा सकता है, अगर तो मैं मामला या उसके मुमकिन है। मामला ना भी जाए तो मामले को ऐसे लोगों को वहाँ जाके हल करना चाहिए, कोशिश भी करना चाहिए कि उसमें इंटरफेयर करें। खानदान कैसे टूटता है? मियाँ बीवी खानदान के 2 सुतून हैं। प्रोग्राम के आखिर में आप नाज़रीन किराम को मियाँ बीवी की हैसियत से क्या नसीहत फरमाएंगे? सबसे ज़्यादा तो मियाँ को तहम्मुल से काम लेना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, और औरत को क़नाअत से काम लेना चाहिए, अपने शौहर के हुकूक़ को पहचानना चाहिए, और तमाम मुस्लिम मुआशरे के अंदर बेदारी पैदा की जाए कि तलाक फौरी हल नहीं है मसले का, और अगर है भी तो बहुत मजबूरी के अंदर 1 या 2 तलाक पर इत्तिफाक करें, उसकी वजह से ना अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और ना औरत निकाह से बाहर होगी, वापस लिया जा सकता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। नाज़रीन किराम, बहुत उम्दा तरीक़े से आप हज़रात ने सुना कि बेजा तलाक़ के कैसे नुक़सानात हैं और किस तरीके से नऊज़ुबिल्लाह
اولاد پر اس کا غلط اثر پڑتا ہے، منفی اثر اس پر کس طریقے سے پڑتا ہے۔ میں تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو دین سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔